Good evening, students. Hope you all are in good health. We have changed the schedule as we have seen through the poll that few students have completed the lectures of discrete mathematics, while majority of the students they have not completed the lectures till now, which deeply hurts us. We are very serious about you all, and you people are not serious about your exams. We are talking about the majority here. So please be serious. This time we have come up with Python programming. This topic is in two parts. Only the topics which are important from the examination point of view are discussed here. At least you all should be familiar with the syntax of the programming language because outputs and general questions will be asked from this area. In similar way, we'll be coming with emerging technologies, AI, blockchain, IoT, cybersecurity, Golang, Java, .NET, PHP, Node.js in the coming weeks. Okay. Now talking about the discrete mathematics, please complete all the three lectures that we have discussed earlier because in the upcoming class the upcoming class will be the last class of discrete mathematics where we will be discussing a lot of things. The base is the previous three lectures, so all of you please complete it by tomorrow. I'll be coming day after tomorrow with discrete mathematics class. By the way, Monica madam, you will be taking Python class. She is very good at it. So let's start the class. Any doubts are welcome in the comment section. Developed by Guido van Rossum in the early 1990s. Then it is named after Monty Python. Uh, Monty Python का एक वो भी आता था, अगर आपने देखा भी होगा, इट्स अ प्रोग्राम। ठीक है, एक सर्कस का एक प्रोग्राम था और उसी के नाम से हमने पाइथन को डिजाइन किया है एंड इट कैन रन ऑन मेनी वेरिएंट्स, यूनिक्स वेरिएंट्स, मैक, विंडोज एक्सेट्रा। और अगर आपको पाइथन को डाउनलोड करना है तो आप www.python.org से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। मैं अगेन आई एम टेलिंग यू, वी आर गोइंग टू डू द कंप्लीट थिंग इन गूगल कोलैबोरेटर। Then what is programming? Just now we have discussed that Python program is going to be composed of certain modules. मॉड्यूल्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस के अंदर हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं और उनको प्रोसेस कर सकते हैं। Then what are the features of Python? Just now I've told you that it is open source, very easy to learn, high level language. Then it is portable. By portable I mean that it can run across all the major hardware and software platforms with few or no change in the source code. So that is why it is portable and could be used in Linux, Windows, Macintosh, Solaris, etc. Then it is object oriented. That means object oriented जब भी बोला जाए, इसका मतलब है इसके साथ आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं क्लासेस के, इनहेरिटेंस के, ऑब्जेक्ट्स के, ओवरलोडिंग के। डू नॉट वरी अगर किसी को ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं है, मालूम ही नहीं है, पहली बार ही सुन रहे हो कि भाई क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो, डू नॉट वरी। Then Python is interactive. It has an interactive console where you can get a Python prompt command line and you can interact with the interpreter very directly, and you can write and test your programs. Then it is interpreted. It is going to take the source code as input. It is going to compile it. It is going to compile each statement and it is going to execute it immediately. कुछ आपको compile करने की जरूरत नहीं, link करने की जरूरत नहीं, ये सब हमने आज के सेशन में करना है। Then it is extendable. So it is also known as a glue language. That means it is capable to work in the mixed language environment. So that is the thing. It is extendable. Then libraries are also available like data sources, databases, web services, networking, numerical packages, 3D graphics, etc. are being provided. Then it is you people can get the support from the online Python community. मैंने बोला Google Colab हम use करेंगे। एक और यहाँ पर मुझे याद आ जाता है उसका बेनिफिट गूगल कोलैब का, वो ये हो जाता है कि गूगल कोलैब इज एन ऑनलाइन वर्किंग थिंग। नाउ दिस इज अ कम्युनिटी वेयर अ लॉट मेनी साइंटिस्ट, अ लॉट मेनी पीपल आर वर्किंग, लॉट मेनी आई वुड से मशीन लर्नर्स आर वर्किंग continuously for its betterment or for its improvement. So that is why you can get the support from the online community also. इस वजह से भी हम लोग गूगल कोलैब को यूज करेंगे। Then what are the major uses of Python? So system utilities, web development, graphical user interfaces like Inter हो गया, GTK, Qt, internet scripting, embedded scripting, database access and programming, game programming, rapid prototyping and development and distributed programming. कहने का मतलब ये है जिसने Python programming को सीख लिया वो इसमें से कोई भी career option भी choose कर सकता है। He can become a web developer, he can become a graphical user interface, कुछ भी बना सकता है। He could स्क्रिप्ट द इंटरनेट, ये सारा आजकल एक करियर ऑप्शंस है जो भी यहाँ पर मेंशन किया है। ऑल दीज आर करियर ऑप्शंस दीज डेज, सो यू कैन
improve yourselves, and you can definitely enter into any of the area which you are interested in, right? If you'll see the organizations using Python sector wise, there is web development. Like for web development, you can see Yahoo Maps are being there, Yahoo Groups, Google, Zoop Corporation, etc. etc. In games, now many of my audience over here are वेरी मच इंटरेस्टेड इन गेमिंग. कुछ तो ऐसे भी बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हमें गेमिंग के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है और बनाया भी है. आई हैव पर्सनली प्लेड मैक्स पेन ट्री. तो मैक्स पेन जैसा जो भी हम गेम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, देयर इज सर्टन स्टोरी इन्वॉल्व. मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ इन अ फ्यू सेकेंड्स ओनली, कि जब मैं उस गेम को खेलती हूँ मैं इतना इन्वॉल्व हो जाती हूँ उस गेम के अंदर, एज इफ कि मैं ही घुस गई हूँ उसके अंदर. और इतना इंटरैक्टिव आपको बनाना ही होता है गेमिंग को, राइट? लाइक सम स्टोरी इज गोइंग ऑन, ओ माय गॉड मेरा मदर को कुछ हो गया, ओ माय गॉड ये हो गया, मुझे उसको बचाना है. सम enthusiasm has to be there and certain ups and downs are going to be involved in that. So all these things would be involved in that. But उसमें क्या होता है, अगर हम जावा यूज करेंगे या कोई भी और डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, तो हमारे लाइन्स ऑफ कोड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं. सो पाइथन इज डेफिनेटली प्रेफर्ड इन गेमिंग सेक्शन ऑल्सो, क्योंकि कोड्स कम हो गए, हमारा जो पर्पस है वो ज्यादा हो गया, हम अपनी गेम को और इंटरैक्टिव बना सकते हैं. So here you have a few examples like Battlefield 2, Crystal Space, Star Trek Bridge Commander, then the Temple of Environmental Evil, etc. etc. Then in graphics also, in financial things also, in science also, Python is being used, right? मैं पहले ही आपको बता दे रही हूँ, Python आजकल हर जगह यूज हो रही है. In electronic design, automation, education, and in business software, we are using Python programming for dealing with the vast sources or for dealing with the vast type of things, right? Then here is the difference between Python 2 and Python 3. आपको बता दिया जा रहा है कि पहले Python 2 आया था and then Python 3 आया था. जब Python 2 आया था तो अब आजकल we are not using it. There are certain privileges of Python 3, कुछ benefits हैं Python 3 के, so we are preferring. और आपको भी बोला जाता है अगर आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे हैं तो कोई भी 3 पॉइंट वर्जन लाइक 3.7, 3.9 कोई भी ऐसा वर्जन डाउनलोड करिएगा if you are interested. If you are not interested in downloading, no harm in that. We'll be using Google Colab, and in Google Colab there is the recent version of everything involved. Like for Python programming, the third version is being used as of now. So but still you should be knowing the difference between 2 and 3. So in Python 2, the legacy is that it is still entrenched in the software at certain companies. Still it is there. And the future is Python 3. It will take over Python 2 by the end of 2019, and it has taken over. Then, because we are in 2023 as of now, then as far as the libraries are concerned, in Python 2.0, many older libraries are built for Python 2. They are not forwards and they are not compatible. And here, many the libraries are strictly for the use of Python 3. Python 3 के लिए strict libraries आ गई हैं. Python 2 में सारे supported नहीं थे. Here we were using the ASCII code. By default ही ASCII code होता था और यहाँ पर हम लोग क्या use करते हैं? Unicode. So here by default the text strings are Unicode. फिर एक आपको एक चीज बताया जाएगा, दैट इज अगर आप 7 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो 2.0 में आपको क्या दे देता है? इट इज गोइंग टू गिव मी द रिजल्ट 3. वैसे एक्चुअली क्या होता है? इट इज 3.5, राइट? बट इट इज राउंडिंग ऑफ योर कैलकुलेशन टू द नियरेस्ट होल नंबर. और ये जो है, ये आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली दे देता है. देन it rounds off your calculation down to the nearest whole number, and this expression is going to give me in the expected values. So here we have understood the difference between Python 2 and Python 3, and which is why Python के अंदर कुछ modifications हुई हैं और कुछ betterments I would say हुए हैं, and which is why we are preferring it over Python 2, right? But अभी भी कुछ companies में आपको दिखेगा. Now next topic for the day, that is Python data types. Very important things. See, हम लोग, मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, हम लोग क्या करेंगे, हम इस लेक्चर के अंदर क्या करने वाले हैं, इस ट्रेनिंग के अंदर क्या करने वाले हैं आज पर्टिकुलर डे में, पहले सारे कोड्स के स्नैपशॉट्स मैंने यहाँ पर दे दिए, सो दैट माय टास्क बिकम्स इजी. आपको बताने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी. आई विल बी एक्सप्लेनिंग द थिंग्स क्विकली ओवर हियर, देन यू पीपल कुड रिलेट इट व्हेन आई विल बी डीलिंग विद द कोडिंग. जब मैं कोडिंग करूंगी तो आपको ये दोनों चीजें रिलेट करने में बहुत ईजी हो जाएगा, तो आपको काम जल्दी समझ में भी आएगा और आपके प्रॉब्लम्स और इश्यूज भी कम आएंगे.
माइंड इट, आपका जब भी डाउट सेशन हो रहा है आपने सिर्फ उस दिन डाउट सेशन से पहले ये लेक्चर पूरा कंप्लीट कर लेना है, आपने डाउट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, एंड यू हैव टू मेल अस at handsonmachinelearning level1@gmail.com, right? So next thing for the day, that is Python data types. Very important thing. See, every value in Python has a data type. कुछ भी आप लिखिए Python के अंदर हर चीज का एक data type होता है. Since everything is an object in Python programming, हर चीज एक object है. Data types are actually the classes. और जो variables होते हैं, they are actually the instances or objects of these classes. तो अभी मैं बता रही थी, काफी लोग को शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उनको मैं दोबारा बता दूं. यहाँ पर हर एक वैल्यू आप कुछ भी लिखे उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं. और हर एक क्लास के कुछ इंस्टेंसेस होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. ठीक है. तो अगर आप एक वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा a इज, लेट मी जस्ट टेक इंट a समथिंग लाइक दिस. तो अगर मैंने एक इंटीजर वैल्यू a ले लिया तो दैट मीन्स a इज अ वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स एनीथिंग दैट कुड वेरी, जो वेरी हो सकता है. And when I am giving the value over here 7, then I am changing it to 9, then I am changing it to 10, anything. So this is just an example. जब भी एक एग्जाम्पल बोला जाएगा तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा. कौन सी क्लास का, मैंने अभी बताया. ये कौन सी क्लास का होगा, दिस इज ऑफ द क्लास इंट, क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप कर लिया. तो हर एक चीज आप कुछ भी लिखेंगे पाइथन में उसका एक डेटा टाइप होगा, इसीलिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और उसके अंदर आप जो भी वेरिएबल्स लेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे. सो द वेरी फर्स्ट डेटा टाइप यू शुड बी नोइंग इज पाइथन नंबर्स. तो नंबर्स में क्या क्या आता है, इंटीजर्स, floating point numbers, complex numbers, they fall under Python numbers category. They are defined as int, float, complex classes in Python. You are not going to say it anything. Data types नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, classes. Now make it a habit to call it as class. Then you can use a type function. हम एक type function use करेंगे ये बताने के लिए कि एक क्लास का जो एक वेरिएबल लिख रहे हो या एक वैल्यू लिख रहे हो एक्चुअली कौन सी क्लास को बिलोंग करता है. सिमिलरली एक फंक्शन है इज इंस्टेंस, ये आपको बताता है इज इंस्टेंस एक्चुअली आई वुड से दिस इज अ बूल फंक्शन. क्यों बूल फंक्शन है, क्योंकि ये रिजल्ट आपको या तो ट्रू में देता है या फॉल्स में देता है. बूल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको रिजल्ट या तो 1 में देगा या 0 में, ट्रू में या फॉल्स में. ठीक है, हाँ या ना में, येस और नो में. जब हाँ या ना में जवाब होते हैं तो उसको बोला जाता है इज इंस्टेंस. और टाइप हमें टाइप बताता है. चलिए फटाफट आप कोड देख लेते हैं. ये छोटा सा कोड हम ऐसे डालते जाएंगे और ये सारी कोडिंग हमने आज के सेशन में कर भी देखनी है, राइट? सो सी, अब बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग. इफ आई एम राइटिंग a इज इक्वल्स टू 5, सिंपली लिख लेना a इज इक्वल्स टू 5 एंड देन आई एम प्रिंटिंग a कॉमा इज द टाइप ऑफ, और यहाँ पे मैंने क्या फंक्शन ले लिया, टाइप ऑफ a. देन व्हेन आई एम राइटिंग a इज इक्वल्स टू 2.0, प्रिंट a इज ऑफ द टाइप. अब क्या टाइप होगा, फिर से मैंने क्या फंक्शन लगाया, टाइप ऑफ a. फिर मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2j, दैट मीन्स whether it is a complex number or not. So यहाँ पर मैं चेक करना चाह रही हूँ कि आंसर मुझे हाँ या ना में दे, ट्रू या फॉल्स में दे कि ये जो मेरा a वैल्यू है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं. सो फॉर दैट वी हैव अ फंक्शन इज इंस्टेंस. कैसे लिखोगे, 1 प्लस 2j जो भी वैल्यू है कॉमा कॉम्प्लेक्स, राइट? तो दिस इज माई आउटपुट. एज यू कैन सी दिस इज माई आउटपुट. वो क्या बता रहा है, 5 is of the type class int, 2.0 is of type class float, 1.2j is a complex number, yes or no, is instance ने आंसर दिया true, right? So ये आपको पता होना चाहिए और इस तरीके से आप छोटे छोटे कोड्स स्टार्ट कर सकते हैं. Then integers can be of any length. Integer किसी भी लेंथ का हो सकता है. It is only limited by the memory available. Floating point is accurate up to 15 decimal places. And आपको तो पता ही है, अगर मैंने 1 लिखा सिंपली 1 तो वो एक इंटीजर है, और अगर मैंने 1.0 लिखा तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जाता है. कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं लिख रही हूँ 1 प्लस 3j समथिंग लाइक दिस, तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो x प्लस yj से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेयर x इज द रियल पार्ट एंड y इज माई इमेजिनरी पार्ट. इमेजिनरी पार्ट होता है. अब देखिए मैंने लिखा a इज इक्वल्स 1 2 3 4 5 6 7 जो भी मैंने वैल्यू दिया, और मैं जब a को प्रिंट कर रही हूँ सिंपली a लिख के, तो मेरा एग्जैक्टली सेम आउटपुट आ जाता है. लेकिन जैसे ही मैं इसको फ्लोटिंग पॉइंट में देती हूँ 0.123, देन इट गेट्स ट्रंकेटेड. तब वैल्यू आपकी नियरेस्ट पॉइंट तक आ जाती है. सो दिस थिंग यू नीड टू नोटिस दैट द फ्लोट वेरिएबल बी गेट ट्रंकेटेड, राइट? और अगर आपने लिखा 1 प्लस 2j करके कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर उसको आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो दैट इज बीइंग सपोर्टेड. दैट मीन्स पाइथन इज सच अ पावरफुल लैंग्वेज
that you can work on any sort of numbers. इंटीजर पे भी काम कर सकते हो, फ्लोट पे भी काम कर सकते हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर भी आप काम कर सकते हो. उसके लिए आप फर्दर जब हमारे साथ लेवल 2 में भी जाएंगे तो ना आपको अलजबरा भी बताया जाएगा. तो जो अलजबरा बताया जाएगा, आपको पता होगा कि दो तरह का अलजबरा होता है, एक लीनियर अलजबरा होता है, एक कॉम्प्लेक्स अलजबरा. तो ये सारी चीजें जो है इनके लिए भी हमारे पास पाइथन के अंदर लाइब्रेरी सपोर्टेड है. So we have to simply import it and we have to deal with our things. We have to straight away start doing the work, right? So that was my first data type. Moving to the next data type, that is list. Again, a very important data type, rather very important data type. तो लिस्ट एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है आइटम्स की. इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डेटा टाइप इन पाइथन एंड इट इज वेरी फ्लेक्सिबल. All the items in the list do not need to be of the same type. This is a very important point. Rather, everything is important that I am telling you, but all the items in the list need not to be of the same type. क्या मतलब इस बात का अभी बताती हूँ. अभी सिर्फ सुन लीजिए. Then declaring a list is pretty straightforward. Items separated by commas are enclosed within brackets. अगर आपको लिस्ट को डिफाइन करना है, जैसे यहाँ पे भी मैंने कर रखा है a is equals to, मैंने एक ब्रैकेट स्टार्ट करा इस तरीके से, तो मेरा लिस्ट जो है वो डिफाइन हो जाएगा. इट इज वेरी इजी. जैसे यहाँ पे किया है a is equals to, और मैंने यहाँ पे बोला है कि लिस्ट में जितने भी आइटम्स है वो सेम टाइप के ना भी हो तो चलेगा. जैसे कि यहाँ पे दिया 1 is of integer type, then 2.0 it is of float, then Python it is of string type. तो ये सारे के सारी चीजें जो है आप एक लिस्ट में डिक्लेयर कर सकते हो. देन देर इज अ स्लाइसिंग ऑपरेटर. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. स्लाइसिंग ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं स्लाइस करने के लिए. इतनी बड़ी लिस्ट में से कुछ अगर स्लाइस करके अगर आपने एक्सट्रैक्ट करना है एक आइटम को या फिर रेंज ऑफ आइटम्स को, तो आप कर सकते हैं. एक चीज आपने अभी से अपने दिमाग में डाल लेनी है. यू हैव टू मेक इट अ मार्क ओवर हियर दैट इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 इन पाइथन. अगर आप पाइथन में इंडेक्सिंग कर रहे हैं, तो दिस इज आर इंडेक्स नंबर 0, दिस इज एट इंडेक्स नंबर 1 एंड दिस इज एट इंडेक्स नंबर 2. हमेशा 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी. राइट इट. ओके. चाहे वो कुछ भी करिए, जरूरी नहीं आप लिस्ट पढ़िए, आप फर्दर टपल भी पढ़ेंगे, कोई भी डेटा टाइप पढ़ेंगे, नमपाई भी पढ़ेंगे, उसमें मैट्रिसेस करेंगे, वेक्टर बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, ध्यान रखना है कि इंडेक्सिंग इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 0. राइट. अब देखिए कोड, देखिए आप कैसे लिखेंगे. a इज इक्वल्स टू 5 10 15 20, जैसे इस तरीके से मैंने लिखा, तो ये मेरा एक लिस्ट जो है वो क्या हो गया, रेडी हो गया. अब मैं यहाँ स्लाइस कर रही हूँ. क्या कर रही हूँ, स्लाइस में कह रही हूँ a ऑफ 2 को एक्सट्रैक्ट करो. तो a ऑफ 2 तो एक एलिमेंट है ना, वो एक्सट्रैक्ट करेगा. अब ये जो लिस्ट है इसकी पहले आपको इंडेक्सिंग देखनी है ना. दिस इज एट इंडेक्स नंबर 0, दिस इज एट 1, दिस इज एट 2, दिस इज एट 3, this is at 4, 5, 6 and 7. That means we have 8 elements, but the indexing is from 0 to 7. No problem. अब बोल रहा है मुझे a of 2 extract करिए. a of 2 मतलब 0, 1, 2. That means 15 element. जो भी element पे number है that is 15. 15 आपका आउटपुट आ जाएगा. फिर बोल रहा है extract करिए एक range of items like a of 0 to 3. So 0 से 3 का मतलब क्या हुआ, आपको वैल्यूज ये जो दिखाएगा ये भी माइंड करिए. दिस इज कीप अ नोट ओवर हियर. जब भी आपको रेंज बोलता है तो जो भी लास्ट इंडेक्सिंग है वो वाला आइटम आपको डिस्प्ले नहीं करता है. 0 से 3 का मतलब है 0 वाली वैल्यू दिखाइए, यानी ये वाली वैल्यू दिखेगी. 10 दिखेगी, यानी 0, 1 एंड 2. सिर्फ 5, 10, 15 यू कैन सी द आउटपुट. 5, 10 एंड 15 इज विजिबल. राइट. जब मैं कोडिंग करूंगी ऐसा कोई होना नहीं चाहिए जिसको ये पता ही ना हो कि ये इंडेक्सिंग कैसे मैम ने कर दिया, ये कैसे आउटपुट आ गया. ये सारी चीजें आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी जा रही है ताकि आपकी कंफ्यूजन्स और प्रॉब्लम्स एकदम मिनिमम हो. ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन डाउट्स होंगे आपके, वो आपने पूछने हैं. राइट. तो थर्ड वाला आइटम जो है वो डिस्प्ले नहीं होता है. नेक्स्ट वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग और स्लाइसिंग, ये सब स्लाइस कर रहे हैं. जैसे मैंने लिखा a 5 onwards, इसको बोला जाता है 5 onwards. इसका मतलब क्या है, आप 5th इंडेक्स पे चले जाइए और उसके ऑनवर्ड्स जितने वैल्यूज है उनको आप दिखा दीजिए. तो आप 5th पे चले गए. अब जब आप स्टार्टिंग में लिख रहे हो तो ये वैल्यू आपको विजिबल होगा. 5th 6th 7th पे क्या वैल्यूज है, 30, 35 एंड 40. सो दैट इज बीन विजिबल. राइट. तो दिस इज अ वे ऑफ स्लाइसिंग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और लिस्ट हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, रिगरस वी आर गोइंग टू यूज इट, तो ये मालूम होना चाहिए आपको. देन द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लिस्ट्स आर म्यूटेबल. म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, लिस्ट्स आर म्यूटेबल. दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी ऑल्टर्ड. ऑल्टर्ड मतलब
चेंज किया जा सकता है, यू कैन चेंज द वैल्यूज। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू 1 2 3, फिर मैं बोल रही हूँ a ऑफ 2 को आप चेंज कर दीजिए इज इक्वल्स टू 4, मान लीजिए मैंने ऐसे किया। a ऑफ 2 का मतलब दिस इज एट 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स। तो जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको आप चेंज करके क्या कर दीजिए 4, और अब जब मैं प्रिंट करूंगी a तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगा 1 2 एंड 4, ये मेरी नई लिस्ट बन जाएगी। यहीं पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैंने लिखा है a इज इक्वल्स टू 1 2 3, इसकी इंडेक्स क्या है 0, इसकी इंडेक्स क्या है 1, इसकी इंडेक्स क्या है 2, दिस इज समथिंग नोन एज पॉजिटिव इंडेक्सिंग। क्या बोला जाता है इसको, पॉजिटिव इंडेक्सिंग। सेम एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग, अगर आप पीछे से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं -1 भी बोल सकती हूँ, -2 भी बोल सकती हूँ, -3 भी बोल सकती हूँ, तो इसको बोला जाता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूँ a ऑफ -1 को प्रिंट करिए, तो a ऑफ -1 अभी जो चेंज होकर आ गया था क्या था 4, तो 4 डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ पे, राइट। देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लिस्ट कैन बी कॉन्कैटिनेटेड, यू कैन कॉन्कैटिनेट द लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट बनाई A, एक लिस्ट बनाई B, एक लिस्ट बनाई C। A के अंदर वैल्यूज है 1 2 3 7 5 -9 8.6, B के अंदर राजू चॉकलेट साइकिल, C के अंदर P 7600 एंड रेस्ट। अगर मैं सिंपली लिखती हूँ A प्लस B तो क्या हो जाएगा, A और B की वैल्यूज देखिए, यहाँ तक A था और ये जो वैल्यूज है ये क्या हो गया B, ये दोनों क्या हो गया आपका मर्ज हो जाएगा, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। फिर मैंने एक डी वेरिएबल लिया, एक्चुअली डी एक वेरिएबल नहीं, अब एक लिस्ट बन गया, बिकॉज वी आर एडिंग ऑल द लिस्ट एंड वी आर क्रिएटिंग अ न्यू लिस्ट। इसके अंदर मैंने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी, तब क्या हो गया सारी की सारी लिस्ट की एंट्रीज जो है वो एड अप हो गई। यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन देखेंगे, अगर हमें लेंथ ऑफ डी निकालना है तो लेंथ ऑफ डी मतलब उसकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो आपको दिखा देगा, दैट इज 13। एक बार काउंट कर लेते हैं फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, सो द राइट आंसर इज 13। फिर बोला जा रहा है नेगेटिव इंडेक्सिंग करने के लिए, बोल रहा है डी ऑफ -5 मुझे निकाल कर दिखाइए, तो ये क्या हुआ -1 -2 -3 -4 एंड -5, तो इस तरीके से ये -5 ऑनवर्ड्स होना चाहिए था, डी ऑफ -5 ऑनवर्ड्स। तो ये ऑनवर्ड्स अगर हम दिखाएंगे तो आप -5 पर पहले चलेगा, यानी दिस इज चॉकलेट, और उसके बाद जितनी वैल्यूज है वो दिखा देगा, एंड दैट इज व्हाई वी सी द रिजल्ट एज चॉकलेट साइकिल P 7600 एंड रेस्ट, राइट। Then if you want to remove particular items from the list, अगर आप करते हैं del तो उसके लिए आपको फंक्शन यूज करना पड़ता है del फंक्शन, ठीक है, del एंड दिस इज द फंक्शन del d ऑफ 3, यानी ये जो आपकी लिस्ट है d, इसका आप जो थर्ड वाली वैल्यू होगी वो आपको डिवाइड कर देना। थर्ड मतलब जो फोर्थ एलिमेंट है, थर्ड इंडेक्स पे मतलब जो फोर्थ इंडेक्स फोर्थ वैल्यू है। देखिए ये कौन से इंडेक्स पर है 0, ये कौन से इंडेक्स पर है 1, ये कौन से इंडेक्स पर है 2, ये कौन से इंडेक्स पर है 3, सो दैट मीन्स कौन सी वैल्यू हुई, फोर्थ वैल्यू वुड बी डिलीटेड। सो आई मीन टू से अब आपकी नई लिस्ट क्या हो जाएगी 1 2 3 और उसके बाद 7 आपका हट गया, क्या आ जाएगा 5 -9। सो डी ऑफ 3 मतलब आप 0 से स्टार्ट करिए और थर्ड इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसको आप डिलीट कर दीजिए। फिर बोल रहा है डेल डी ऑफ -2 ऑनवर्ड्स, यानी आपको पीछे से जाना है, -2 ऑनवर्ड्स बोल रहा है, यानी क्या हुआ -2 आप यहाँ पर चले गए और इसके ऑनवर्ड्स यानी 7600 और रेस्ट ये डिलीट कर दीजिए। तो आप देख भी सकते हैं अभी आपने पहले 7 डिलीट कर दिया और उसके बाद अब आपका P के बाद 7600 और रेस्ट हट गया। तो इस तरीके से आपको इंडेक्सिंग और छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। देन if you have to check for the existence of the element in a list, एक लिस्ट में कोई एलिमेंट है या नहीं, उसके लिए आपका एक बड़ा छोटा सा कीवर्ड होता है, उसको बोला जाता है in, या फिर एक और होता है not in, ठीक है। तो 3 क्या D के अंदर है, D अब आपको पता है आपका लिस्ट है, is 3 present in D, the answer is true, क्योंकि 3 तो प्रेजेंट है। राजू प्रेजेंट है तो आपने सिर्फ क्या लिखना है राजू इन D, सिर्फ ये कोड होना चाहिए राजू इन D। आप देख भी सकते हैं कोडिंग कितना कम हमें लिखना पड़ रहा है। राइट आंसर इज ट्रू। P in D, अगेन द राइट आंसर इज ट्रू, राइट। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स में आप दो कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, इन और नॉट इन। नेक्स्ट डेटा टाइप दैट इज टपल। टपल क्या है, ये भी एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम्स है, जैसे आपने लिस्ट में पढ़ा है सेम एज लिस्ट। ओनली डिफरेंस इज, अब इसमें भी आप कोई भी आइटम ले सकते हो, कोई भी डिफरेंट डेटा टाइप के, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि टपल्स आर इम्यूटेबल, दैट मीन्स they can not be changed, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। टपल्स once created they cannot be modified, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। टपल्स आर used to write protect the data and they are usually faster than lists as they cannot change dynamically।
कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हो, बन गया एक बार तो बन गया, तो आपकी ऑब्वियसली जो भी आपका डेटा में जो भी काम करना है, जो भी प्रोसेसिंग करनी है, वो ऑब्वियसली फास्टर होगी। जैसे आप लिस्ट बनाते थे तो आप एक स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते थे, लेकिन टपल्स में आपको जो यूज करना है, आपको ये वाला पैरेंथेसिस यूज करना है। जैसे मैंने एक टपल बनाया, t is equals to 5 comma program comma 1 plus 3j. Now this is my integer thing, this is my string thing and this is my complex thing. मेरा t बन गया, ठीक है। टाइप चेक करना देख सकते हो, जब टाइप ऑफ t करोगे तो आंसर दिखाएगा टपल। देन इसमें भी आप स्लाइसिंग यूज कर सकते हो, बट वी कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। अगर मैंने t ऑफ 1 बोला तो t ऑफ 1 में मुझे क्या दिख जाएगा, दिस इज एट 0th पोजीशन, दिस इज एट 1, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए प्रोग्राम। देन t ऑफ 0 to 2, t ऑफ 0 to 2 का मतलब क्या हुआ कि 0 से स्टार्ट करो और लास्ट डिजिट तक नहीं देना, यानी 2 आइटम्स, 0 और 1 वैल्यू, आप 1 वाली इंडेक्सिंग पे जो वैल्यूज है वो आपको दिखा देगा। सो द राइट आंसर इज 5 एंड प्रोग्राम। देन अगर आप कोशिश भी करोगे t ऑफ 0 को 10 करने के लिए, यानी t ऑफ 0 पर क्या है वैल्यू, अभी 5 है, अगर आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और लिख रहे हो t ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 10, अगर आप 10 करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको एक एरर दे देगा, और एरर में क्या बोलेगा, टपल्स आर इम्यूटेबल, यू कैन नॉट चेंज देम। आपने जो पहले क्रिएट कर लिया वो कर लिया। देन टपल्स कैन बी कॉन्कैटिनेटेड, आप कॉन्कैटिनेट इसको कर सकते हो। मान लीजिए टी मैंने जो भी बनाया था 5 प्रोग्राम 1.3, उसके साथ में एक और टपल ऐड करना चाहूँ तो मैं उसको बहुत इजीली कॉन्कैटिनेट कर सकती हूँ, राइट। सो व्हाट वी हैव डन नंबर्स in the data types, then we have understood what is a list, then we have understood what is a tuple. Next type of data type is string. See, string is a sequence of Unicode characters. We can use single quotes or double quotes to represent strings. जैसे मैंने लिखा this is a string, तो मेरा string ready हो गया। लेकिन अगर आपको मल्टी लाइन चाहिए तो आप उसके लिए ट्रिपल कोट या 6 टाइम्स कोट्स भी लिख सकते हैं। लाइक अगर मैं लिख रही हूँ, मुझे कोई भी स्लैश एन या कोई भी फंक्शन नहीं यूज करना नेक्स्ट लाइन के लिए, न्यू लाइन के लिए, और मैं स्ट्रेट अवे ऐसे लिखती हूँ ना, अगर एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और यहाँ पर मैं अगर इस तरीके के कोट्स दे देती हूँ, ट्रिपल कोट्स, और फिर उसको प्रिंट करती हूँ, तो मैंने जैसे लिखा वैसे मुझे विद द नेक्स्ट लाइन आंसर दिख जाता है, राइट। तो कुछ बेनिफिट्स है। देन जस्ट लाइक लिस्ट एंड टपल, स्लाइसिंग ऑपरेटर आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, लेकिन दे आर इम्यूटेबल। जैसे मैं लिख रही हूँ s इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब यहाँ पर दिया हुआ हेलो वर्ल्ड, दिस इज एट इंडेक्स 0, दिस इज एट 1, दिस इज एट 2, दिस इज एट 3, दिस इज एट 4, अब यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा है, उसको बोलते हैं इंडेक्स 5। फिर ये हो गया 6 पर, 7 पर, फिर ये हो गया 8 पर, ये हो गया 9 पर, डी वाला जो है ये हो गया 10 पर, और ये जो आपने दिया एक्सक्लेमेशन मार्क ये हो गया 11 पर, राइट। अब वो बोल क्या रहा है, एस ऑफ 4 दिखाना, यानी 0 1 2 3 4, यानी क्या आंसर आ जाना चाहिए, ओ, द वैल्यू इज ओ। नेक्स्ट बोल रहा है स्लाइस करिए 6:11, 6:11 का मतलब क्या हुआ, 5 तो मेरा स्पेस था, तो 6:11 का मतलब मुझे पूरा दिखा देगा ये WORLD तक विद द एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। और अगर आप कभी भी कोशिश करो, मान लीजिए कि 5 पर अभी मेरा स्पेस है, स्पेस की जगह पर मुझे डी लिखना है, तो मुझे फिर से एरर दे देगा, क्या बोलेगा, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन पाइथन। कॉन्कैटिनेशन, आप इसमें भी कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक x स्ट्रिंग बनाया, पाइथन इज, y बनाया ऑसम, और मैं z में लिख रही हूँ x प्लस वाई, जब प्रिंट करूंगी तो मुझे दिखाएगा पाइथन इज ऑसम, राइट। देन अगर आपको स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है तो उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है len। जैसे अगर आपने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड hg, जो भी कुछ लिखा, और अगर आप करना चाहते हो प्रिंट लेंथ ऑफ a, तो वो मुझे आंसर दे रहा है 19। एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं, 19 होगा, 1 2 3 4 5, कॉमा भी काउंट होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो 19 इज द राइट आंसर। देन पाइथन के अंदर कुछ सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड्स भी होते हैं जो आप स्ट्रिंग्स के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे कि एक होता है अपर केस, ठीक है। अगर आपको अपर करना है, मान लीजिए आपने ए लिखा हेलो वर्ल्ड, अगर आप लिखते हैं प्रिंट ए डॉट अपर, तो अगर आप इसको प्रिंट करेंगे आपको क्या दिखा देगा, हेलो वर्ल्ड। देन लाइकवाइज लोअर केस के लिए लोअर मेथड, अगर आपने हेलो वर्ल्ड लिखा वो आपको हेलो वर्ल्ड सब छोटा करके दिखा देगा। देन फॉर रिमूविंग द वाइट स्पेस, अगर आपने स्पेस बिफोर या आफ्टर द एक्चुअल टेक्स्ट दिया है एंड इफ यू वांट टू रिमूव इट, तो आपके पास एक मेथड होता है स्ट्रिप मेथड का, माइंडेड फ्रॉम द बिगिनिंग और द एंड, इन बिटवीन नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा a इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, और मैं लिख रही हूँ प्रिंट a डॉट स्ट्रिप मेथड, तो क्या होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है एक स्पेस, वो गायब हो जाएगा, और यहाँ पर जो स्पेस है वो गायब हो जाएगा।
फ्रॉम द बिगिनिंग और द एंड, लेकिन इन बिटवीन वाला गायब नहीं हो रहा है। किस मेथड से? स्ट्रिप मेथड से। रिप्लेस, अगर आपको एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस करना है तो उसके लिए रिप्लेस मेथड, जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, a डॉट रिप्लेस वर्ल्ड की जगह h की जगह पे मैंने क्या कर दिया j, तो जहां भी h होगा वहां पे क्या बन जाएगा? हेलो वर्ल्ड क्या बन गया? जेलो वर्ल्ड। ये सारा कोड हम रन कर कर देखेंगे आज के सेशन में, राइट। और पैरेलली अगर आप लोग के पास लैपटॉप्स हैं या अगर पैरेलली आप लोग के पास मोबाइल फोन्स हैं तो आप लोग कोलैब में काम करना स्टार्ट कर देंगे और ये सारा काम मेरे साथ साथ भी कर लेंगे। नेक्स्ट डेटा टाइप इज सेट्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप। सी, अभी तक हमने सब ऑर्डर्ड डेटा टाइप पढ़ा है। सेट जो है, दिस इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। Here the items cannot repeat. These points should be noted. These are the unique items. Set is defined by the values which are separated by comma inside these brackets, right? तो इस तरीके के अगर आपने brackets use कर लिए तो वो sets बन गया। Then items in a set are not ordered. Ordering इसमें नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a is equals to 5 2 3 1 5 और इस तरीके से मैंने ऐसे बनाकर मैंने एक सेट बना दिया और अगर मैं इसको डिस्प्ले करती हूँ तो मुझे उसने दिखा दिया। अगर मैं उसका टाइप चेक करना चाहती हूँ मुझे दिखा देगा क्लास सेट। अब सेट्स के पास यूनिक वैल्यूज होती है। मान लीजिए कोई अगर आप में से एक के ज्यादा वैल्यूज दे देता है तो वो डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग a इज इक्वल्स टू 1 2 2 3 3 3 मैं एक ऐसा सेट बनाना चाहती हूँ तो मैं प्रिंट करूंगी ना एक को तो मुझे वैल्यूज क्या दिखेंगी 1 2 एंड 3 बिकॉज सेट इज हैविंग द यूनिक वैल्यूज। अब सेट के ऊपर आप सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे यूनियन आप कर सकते हैं, इंटरसेक्शन आप कर सकते हैं और भी सेट डिफरेंस वगैरह आप निकाल सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे एक बार आप देख लीजिए। ठीक, वी कैन डू द प्रोग्रामिंग एनी टाइम। हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं लेकिन वो काम वो रिजल्ट कर कर कैसे दिखा रहा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। वो करना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये आंसर कैसे आ गया है और ये भी नहीं समझ पाओगे कि जो आंसर मेरा आया है वो सही भी आया है कि नहीं आया है। सो टू चेक और टू जज द थिंग्स यू शुड बी हैविंग द नॉलेज ऑल्सो। आपके पास वो बात आपको समझ में आई हुई होनी चाहिए तभी चेक कर पाओगे, राइट। सो यूनियन अगर आपको निकालना है दो सेट्स का तो यूनियन आपको पता है कि यूनियन क्या होता है। पहले मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैंने a एक सेट बनाया b एक सेट बनाया, बाय यूनियन आई मीन दैट ऑल द वैल्यूज विच आर बीइंग इन्वॉल्व्ड इन द सेट a और ऑल द वैल्यूज इन द सेट b शुड बी शोन। सारे के सारे एलिमेंट्स आपको दोनों सेट से निकाल कर दे देता है। इसको परफॉर्म करने के लिए आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं डायरेक्टली यूनियन भी, या फिर आपके पास एक ऑपरेटर होता है इस तरीके से जिसको कभी कभी और ऑपरेटर भी बोलते हो। इस ऑपरेटर से भी आप काम कर सकते हो। सो इट कुड बी अकम्प्लिश्ड यूजिंग दिस मेथड ऑल्सो और यूजिंग दिस ऑपरेटर ऑल्सो। कैसे? जैसे मैंने a एक सेट बनाया b एक सेट बनाया और अगर मैं कह रही हूँ प्रिंट a और b तो मुझे क्या मिल जाएगा। देखिए a में जितने एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 तो इसने लिख दिया 1 2 3 4 5। अब b में चेक करेगा, b में देखेगा कि b में 4 5 तो पहले ही हो गया और आपको पता है कि सेट में यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, 6 7 8 जो है वो भी दिख जाएगा इसमें, राइट। और अगर आप यूनियन मेथड से करना चाहें तो आप क्या करेंगे a डॉट यूनियन ऑफ b एंड b डॉट यूनियन ऑफ a तो भी आपको सेम रिजल्ट दिखा देगा, राइट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो a और b सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट्स है उनको दिखाया जाए, पूरे के पूरे आइटम्स को ना दिखाया जाए, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को दिखाया जाए। सेम काम आप इंटरसेक्शन मेथड से भी कर सकते हो या फिर एंड ऑपरेटर से भी कर सकते हो। देखिए a और b में पहले आप खुद देख लीजिए 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 कॉमन क्या है 4 एंड 5 इज द कॉमन, तो रिजल्ट आपको 4 5 दिखाना चाहिए। अगर प्रिंट करोगे a एंड b तो भी रिजल्ट ये आएगा a डॉट इंटरसेक्शन b तब भी यही, b डॉट इंटरसेक्शन a तब भी यही आएगा, राइट। तो यूनियन आपको पता होना चाहिए, इंटरसेक्शन, देन डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सी डिफरेंस ऑफ द सेट b फ्रॉम a, इसको हम लिखते हैं a माइनस b। इसका मतलब ये हुआ इट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर ओनली इन द a, वो एलिमेंट्स जो सिर्फ a में है और b में नहीं है। सिमिलरली b माइनस a का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स जो b में है और a में नहीं है। सो सेट डिफरेंस को आपको परफॉर्म करना है तो आप माइनस वाला ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं या फिर डिफरेंस मेथड होता है। जैसे आप देखिए a में मेरी वैल्यूज क्या है 1 2 3 4 5, b में क्या है 4 5 6 7 8। अब मैं जब लिखती हूँ प्रिंट a माइनस बी तो a माइनस बी में वो एलिमेंट्स दिखाएगा जो सिर्फ a में होगा और b में नहीं होगा। यानी
1 2 3 4, वैसे तो 1 2 3 4 5 दिखाना चाहिए, लेकिन उसने चेक किया कि 4 और 5 तो बी में है, सो द राइट आंसर शुड बी 1 2 and 3। लाइकवाइज अगर मैं डिफरेंस करती हूँ ए डॉट डिफरेंस ऑफ बी, तब भी मुझे सेम आंसर देगा। अगर मैं बी माइनस ए करती हूँ, अब देखो बी माइनस ए, तो बी में एलिमेंट्स क्या है, देखिए 8 है, 7 है, 6 है। रिजल्ट देखिए कैसे भी दिखा सकता है, 7 6 8 भी दिखा सकता है, या फिर 8 6 7 भी दिखा सकता है, कुछ भी दिखा सकता है, क्योंकि आपको पता है इसमें ऑर्डरिंग नहीं होती है। तो उससे आपको घबराना नहीं है। आइटम्स 8 एक ही बार दिखाएगा, 7 एक ही बार दिखाएगा, 6 एक ही बार दिखाएगा। फिर इसको 4 5 दिखाना था, 4 5 इसने बोला अरे ये तो ए में है, तो आपका आंसर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज 8 7 and 6। आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिफरेंस निकाल रहे हो फिर से देखिए, 6 7 8 मतलब बात एक ही है, ठीक है। ये तो हो गया आपका यूनियन, एक हो गया आपका डिफरेंस, एक हो गया आपका इंटरसेक्शन। अब एक चीज होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ द एलिमेंट्स इन ए एंड बी बट नॉट इन बोथ। ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी में हो लेकिन बोथ में नहीं हो, यानी इंटरसेक्शन वाली चीज को हटा देता है। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको ये जो पावर में होता है वो वाला ऑपरेटर यूज करना, या फिर एक मेथड होता है सिमेट्रिक अंडरस्कोर। अब ध्यान रखना यहाँ पर अंडरस्कोर इन्वॉल्व होता है, सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस। तो देखिए जैसे ए मैंने लिया सेम चीज बी मैंने लिया, ऐसे अगर मैं कर रही हूँ ए और बी तो मुझे वो सारे आइटम्स दिखाएगा जो किसमें होंगे, ए में होंगे और बी में होंगे, लेकिन कॉमन वाली वैल्यूज हटा देगा। यानी 1 2 3 कॉमन, 4 5 कॉमन है, हट गया, यहाँ से भी हट गया, और क्या है 6 7 8। तो 1 2 3 6 7 8। लाइकवाइज अगर आप ए डॉट सिमेट्रिक भी कर रहे हैं, या फिर अगर आप बी डॉट सिमेट्रिक अंडरस्कोर डिफरेंस ऑफ ए करेंगे, तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा, यही वैल्यूज मिलेगा 1 2 3 6 7 and 8, राइट। सिंस द सेट आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन, अब एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, इसमें तो ऑर्डरिंग ही नहीं, जब ऑर्डरिंग ही नहीं है तो आप इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर ही नहीं सकते। इंडेक्सिंग हैज नो मीनिंग हेयर, हेंस यहाँ पर सेट्स में स्लाइस ऑपरेटर काम नहीं करता है। You should note it down that can we slice a particular item from a set? No, we cannot use, क्योंकि इंडेक्सिंग है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। और अगर आपने कोशिश भी करी तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। जैसे ए आपने 1 2 3 बनाया, अगर आप ए ऑफ 1 कर रहे हैं तो आपको एरर दे देगा। एरर क्या बोलेगा, इंडेक्सिंग का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, राइट। एंड देन द लास्ट डेटा टाइप फॉर द डे, दैट इज पाइथन डिक्शनरी। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी भी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है, बट दिस इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। इसमें क्या होता है, की होता है और एक वैल्यू पेयर्स होते हैं। इट इज जनरली यूज व्हेन वी हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। अगर हमारे पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तब हम इसको यूज करते हैं। डिक्शनरीज आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर रिट्रीविंग द डेटा। वी मस्ट नो द की टू रिट्रीव द पर्टिकुलर वैल्यू। अब एक ताला है, उसमें उसकी चाबी लगाने के लिए उसकी चाबी कुछ और है और आप लगा कुछ और रहे हो। मान लीजिए एक डोर है, डोर पर आप कबर्ड की चाबी लगा रहे हो, खुलेगा नहीं खुलेगा। तो आपको चाबी एकदम एक्यूरेट पता होनी चाहिए टू रिट्रीव अ पर्टिकुलर वैल्यू। सो इन पाइथन डिक्शनरीज आर डिफाइंड विद इन ब्रेसेस। आप डिक्शनरी को ब्रेसेस के अंदर दिखाते हो, विद ईच आइटम बीइंग इन द फॉर्म ऑफ कीज टू वैल्यू, ठीक है। की किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, वैल्यू किसी भी डेटा टाइप का हो सकती है। ये जरूरी नहीं है अगर मैंने इंट डेटा टाइप का की लिया है तो वैल्यू में 1 ही लिख सकती हूँ, 2 भी लिख सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इसको 2.0 भी लिख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब क्या है, एक बार देखेंगे। जब आप कोड लिखेंगे डी इज इक्वल टू, आप डिक्शनरी बनाएंगे, मैं लिख रही हूँ 1 प्राइम मिनिस्टर। अब 1 क्या है, इंटीजर टाइप का, प्राइम मिनिस्टर क्या है, स्ट्रिंग टाइप का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। की 1 के अंदर वैल्यू क्या है, प्राइम मिनिस्टर। फिर एक की मैंने लिया है, उसका नाम ही मैंने दे दिया की, और उस की के अंदर वैल्यू क्या है 5, और इसका टाइप देखोगे तो आपको दिखाएगा डिक्ट, DICT। and we can use the key to retrieve the respective value but not the other way round। ये भी बात ध्यान में रखने वाली है। एक चाबी से तो आप एक दरवाजा खोल सकते हो, अगर दरवाजा बंद है और अगर आपके पास चाबी नहीं है तो आप वो उल्टा वे राउंड में काम नहीं कर सकते। यानी अगर 1 के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, अगर आपने 1 को एक्सट्रैक्ट किया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, लेकिन अगर आप प्राइम मिनिस्टर को एक्सट्रैक्ट करके देखना चाहते हो कि उसका की क्या वैल्यू क्या है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट मेक दिस थिंग हैपन, ये काम हो ही नहीं सकता, राइट। अगर मैं लिख रही हूँ प्रिंट डी ऑफ 1 इज इक्वल टू डी ऑफ 1, तो मुझे क्या दिखा देगा, डी ऑफ 1 इज इक्वल टू जो भी डी ऑफ 1 के अंदर वैल्यू है, यानी डिक्शनरी की 1 के अंदर क्या वैल्यू, प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर दिखा देगा, राइट। फिर अगर मैं दिखा रही हूँ डी ऑफ की, उसके अंदर क्या वैल्यू 5, तो 5 दिखा देगा।
राइट। और अगर मान लीजिए अगर आपने लिखा डी ऑफ 5, मान लीजिए अगर आपने डी ऑफ 5 लिखा, यानी वैल्यू से अगर आप ऐसे जाना चाहते हो, वैल्यू से की दिखाए मुझे, तो आपको क्या दे देगा, एरर। ठीक है, it is going to generate the error. So what are the properties of dictionary keys? There are two important things that you have to keep in mind for the dictionary keys. More than one entry per key is not allowed. एक की के अंदर एक ही एंट्री आप रख सकते हो, नो डुप्लीकेट की इज अलाउड। सेकेंड थिंग, द वैल्यूज इन द डिक्शनरी कैन बी ऑफ एनी टाइप। जो आप वैल्यूज रखेंगे डिक्शनरी में वो किसी भी टाइप की हो सकती है। वाइल द कीज मस्ट बी इम्यूटेबल, और कीज को आप ऐसे रखिएगा, ऐसा नहीं डेटा टाइप दीजिएगा जो कि चेंज हो सके, ऐसा डेटा टाइप दीजिएगा की का जो चेंज ना हो सके, जैसे नंबर दे देना, टपल दे देना, स्ट्रिंग दे देना, लेकिन इम्यूटेबल डेटा टाइप देना। म्यूटेबल डेटा टाइप आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि की तो चेंज करना ही नहीं है ना, हमने तो उसको यूनिक रखना है, इसलिए। फिर डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो केस सेंसिटिव भी होती है, दे आर केस सेंसिटिव। सेम की नेम बट विद डिफरेंट केसेस आर ट्रीटेड एज डिफरेंट कीज। अगर मैंने लिखा MONIKA और मैं इसको एक की बनाना चाह रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, की बन गया। और इसके अंदर मान लीजिए मैंने एक वैल्यू दे दिया, लेट्स से इसके अंदर वैल्यू दे दिया ABC, कुछ भी दे दिया मैंने। और अगर मैं लिख रही हूँ MONIKA और इसके अंदर मैंने वैल्यू दे दिया 1 2 3, तो माइंडेड ये की डिफरेंट है, ये वाली की डिफरेंट है, समझ रहे हो? ये कुछ पॉइंट्स है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। Then changing and adding the dictionary elements. See, dictionaries are mutable. We can add the new items or we can change the values of the existing items also using an assignment operator. आप change कर सकते हो। If the key is already present, अगर पहले से key present है, then the existing value जो है वो update हो जाएगी। अगर पहले से है तो update भी हो जाएगा। और इन केस अगर की प्रेजेंट नहीं है तो एक नया पेयर ऐड भी हो जाएगा डिक्शनरी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत इजी है इसको यूज करना। जैसे मैंने एक डिक्शनरी बनाया, माई अंडरस्कोर डिक्ट इज इक्वल्स टू नेम जैक एज 26, और मैं वैल्यू अपडेट करना चाह रही हूँ। माई डिक्ट में मैं एज क्या कर देना चाह रही हूँ, अब 27। मैं प्रिंट करूंगी तो नेम दिखाएगा जैक और एज अब क्या हो जाएगा 27। कुछ अगर आइटम आपको देना है, जैसे माई डिक्ट एड्रेस, अगर मान लीजिए एड्रेस तो है नहीं, वो देखेगा डिक्शनरी तो वो ऐड कर लेगा और वो क्या कर देगा, डाउन टाउन। तो इसको प्रिंट करोगे तो वैल्यूज आपको क्या दिखाएगा, आपको डिक्शनरी में वैल्यू दिखाएगा। नेम तो हो गया जैक, देन एज हो गया, अभी आपने चेंज कर दिया 27, और फिर आपको दिखाएगा एड्रेस क्या हो गया आपका, डाउन टाउन, राइट। तो इस तरीके से इसमें आप बहुत तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं। एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो उसके लिए आप पॉप मेथड्स यूज कर सकते हैं। देयर इज अ मेथड नोन एज पॉप मेथड। दिस मेथड इज गोइंग टू रिमूव एन आइटम विद द प्रोवाइडेड की एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न एन वैल्यू। वो आइटम को रिमूव कर देगा और एक वैल्यू को रिटर्न करेगा। मेथड सिर्फ पॉप नहीं है, और भी मेथड होता है, पॉप आइटम भी होता है। ये क्या करता है, ये रिमूव करता है और एक आर्बिट्रेरी आइटम पेयर भी रिटर्न करता है। ऑल द आइटम्स कैन बी रिमूव्ड एट वंस, सारे आइटम्स को एक ही साथ रिमूव करना है तो आप मेथड यूज करोगे क्लियर मेथड को, ठीक है। और आप एक और चीज यूज कर सकते हो, डेल कीवर्ड, टू रिमूव द इंडिविजुअल आइटम्स और द एंटायर डिक्शनरी। क्या मतलब, एक बार देख लीजिए। पहले एक डिक्शनरी बनाई मैंने स्क्वायर्स करके, डिक्शनरी का नाम है स्क्वायर्स। इसमें मैंने वैल्यू दी है 1:1, 2:4, 3:9, 4:16, 5:25। कोई बात नहीं, इसके स्क्वायर्स आपको दिख रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 एंड सो ऑन। अगर मैं प्रिंट करने को बोल रही हूँ स्क्वायर्स डॉट पॉप ऑफ 4, तो ये 4 क्या है मेरा, की, यानी यहाँ पर चला जाएगा की और इसके अंदर वैल्यू क्या है 16, तो ये मुझे वो पॉप करके दे देगा। अगर आपको एक आर्बिट्रेरी आइटम चाहिए, कुछ भी आर्बिट्रेरी आइटम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर्स डॉट पॉप आइटम, तो कुछ भी आपको वैल्यू दे देगा, 5,25 उसने आपको दे दिया, एनीथिंग। देन अगर आपको प्रिंट करना है स्क्वायर्स का, तो अब तो आपको पता है, आपने यहाँ पर पॉप कर दिया है, कौन सा पॉप कर दिया, 4th वाला, यानी आपको क्या दिखाएगा 1:1, 2:4, 3:9, और ये भी आपने रिमूव कर दिया पॉप आइटम से 5:25, तो ये भी आपका हट गया, ठीक है। तो 3 आइटम्स आपके रह गए। और अगर आपको पूरा रिमूव करना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर्स डॉट क्लियर, तो आप जब प्रिंट करेंगे तो वो इस तरीके से दिखेगा, दैट मीन्स एम्प्टी डिक्शनरी। डिक्शनरी है लेकिन एक एम्प्टी डिक्शनरी है, और ये एम्प्टी डिक्शनरी को भी डिलीट करना है तो आप कीवर्ड क्या यूज करेंगे, डल स्क्वायर्स, राइट। तो अब ये कीवर्ड को करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इट इज गोइंग टू थ्रो एन एरर, क्योंकि एम्प्टी डिक्शनरी है, उसको आप भी डिलीट करना चाह रहे हो, उसको आप प्रिंट भी करना चाह रहे हैं। डिलीट तो देखिए डेल स्क्वायर से हो गया, फिर आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, जब प्रिंट करना चाह रहे हैं तो वो नहीं दिखाएगा ना, ऐसा तो कोई डिक्शनरी है ही नहीं, तो आपको क्या दे देगा, एरर दे देगा। फिर एक चीज है, अगर आपको मेंबरशिप टेस्ट देखना है कि एक पर्टिकुलर मेंबर उसमें है कि नहीं,
ठीक है. सो वी कैन टेस्ट इफ अ की इज इन द डिक्शनरी और नॉट यूजिंग अ कीवर्ड इन, और अभी पहले भी बताया नॉट इन करके, वो आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं ट्रू फॉल्स लिखने के लिए. जैसे मेरे एक स्क्वायर्स है वही सेम 1:1, 3:9, 9:81. मैं चेक करने के लिए बोल रही हूँ प्रिंट 1 इन स्क्वायर्स, क्या 1 है स्क्वायर्स में, तो मुझे उसने आंसर क्या दे दिया, ट्रू, क्योंकि 1 जो है वो मेरा वैल्यू इसके अंदर है. फिर वो पूछ रहा है 2 इन स्क्वायर्स. अब देखिए 2 तो इसमें की ही नहीं है, सॉरी यहाँ पर जो 1 इन स्क्वायर्स है पहले की देखेगा फिर की का वैल्यू दे दिया, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है 2 इन स्क्वायर्स. 2 तो कोई की ही नहीं है, की ही नहीं है तो ढूंढेगा क्या. सो 2 इज नॉट देयर, तो यहाँ पर आपने लिख दिया नॉट इन. तो इन या नॉट इन से आप मेंबरशिप चेक कर सकते हैं, मेंबर है कि नहीं है. तो हेयर ऑल्सो द राइट आंसर इज ट्रू. फिर वो बोल रहा है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, मेंबरशिप टेस्ट आर फॉर की ओनली नॉट द वैल्यू. वैल्यू चेक नहीं करता, सिर्फ की चेक करता है. अब चेक करने के लिए बोल रहा है प्रिंट 49 इन स्क्वायर्स. अब 49 है, आप लोग देख के बोलोगे मैम 49 तो है, लेकिन 49 वैल्यू है, आपको की चेक करना है. की कौन कौन सी की है, 1, 3, 5, 7 और 9. अगर वो बोल रहा है 49 इन स्क्वायर्स का प्रिंट कर दीजिए तो आपको आंसर देगा फॉल्स. 49 कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ अगर बोलता प्रिंट 7 इन स्क्वायर्स तो आंसर हो जाता ट्रू, और उसका वैल्यू भी आपको दिखाना तो दिखा देता, उसका वैल्यू कितना है 49. आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. देन अगर आपको डेटा टाइप्स के बीच में कुछ कन्वर्जन करना है, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आपको लगता है इंटीजर को फ्लोट में होना चाहिए था, फ्लोट को इंटीजर में होना चाहिए था, किसी को स्ट्रिंग में होना चाहिए था, किसी को किसी और चीज में होना चाहिए था, तो उसके लिए यू कैन डू दी कन्वर्जन ऑल्सो. कन्वर्जन फंक्शन है इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, str फंक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा. देखिए अगर आप कन्वर्जन करते हैं फ्लोट से इंट में, सो इट इज गोइंग टू ट्रंकेट द वैल्यू, इट इज गोइंग टू मेक इट क्लोजर टू जीरो, वो जीरो के क्लोजर कर देगा. नहीं समझे, देखो ये 10.6 तो आपको पता है एक फ्लोटिंग नंबर है, इसको मैंने लिखा है इंट के अंदर, इंट ऑफ दिस, तो मुझे क्या कर देगा वो 10 प्रिंट कर देगा. फिर -10 ऑफ दिस, तो भी मुझे क्या प्रिंट कर देगा -10. अब अगर मुझे फ्लोट में प्रिंट करवाना है एक इंटीजर नंबर को, तो वो क्या दे देगा 5.0. तो इस तरीके से आप कन्वर्जन्स कर सकते हैं, और उसके जो भी क्लोजर टू जीरो वैल्यूज होगा वो आपको दे देगा कन्वर्ट करके. Then conversion to and from a string must contain compatible values. अगर आप string में conversion कर रहे हो या string से conversion कर रहे हो to और from string, तो आपको ध्यान रखना है कि जो values हैं वो compatible होना चाहिए. जैसे मैं लिख रही हूँ float of 2.0, अब जैसे मैंने ऐसे लिखा 2.0 सॉरी 2.5, तो ये मेरा एक्चुअली जैसे ही मैं इसको कोलन में इसमें कोट्स में देती हूँ ये स्ट्रिंग बन गया. अब इस स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे दिखेगा 2.5. अब मान लीजिए अगर मैं कर रही हूँ ये जो 25 है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, अब ये मुझे एरर दे देगा, सॉरी ये एरर नहीं देगा, इसको 25 को अगर आपने स्ट्रिंग में करना है तो ये ऐसे 25 दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन अगर आप 1p लिखेंगे, 1 और p, ये तो कंपैटिबिलिटी ही नहीं है. अब इसको आप बोल रहे हो ये स्ट्रिंग में आपने लिखा, ठीक है स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो, आपने इसको ऐसे कोट्स में दिया स्ट्रिंग बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इसको बोलते हो आप इंटीजर में कन्वर्ट करो, इंटीजर में वो कैसे कन्वर्ट करेगा, उसको नहीं समझ में आ रहा कि ये इंटीजर है या ये स्ट्रिंग है, तो मैं इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करूं, तो आपको एरर जनरेट कर सकता है. वी कैन इवन कन्वर्ट वन सीक्वेंस टू अनदर. मान लीजिए आपने एक सेट बना दिया, सॉरी एक लिस्ट, ये जो है ये ब्रैकेट्स में क्या है लिस्ट है. अब आपको लगता है नहीं लिस्ट नहीं, मुझे इसको सेट बनाना है, मुझे इसको चेंजेस इसमें अलाउ नहीं करना है, अभी तक मैं चेंज मैं कर सकता हूँ और कोई चेंज नहीं करेगा इसमें, तो उसके लिए आपने इसको क्या कर देना है, लिख देना है सिर्फ सेट फंक्शन लगा देना, ये सेट में देखो कन्वर्ट हो गया, अब कोई इसको चेंज नहीं कर पा रहा है. ठीक है, अब जैसे आपने ये सेट बनाया, अब सेट को आप चाहते हो टपल में कन्वर्ट करना, तो आपको सिर्फ उस टपल के अंदर, टपल आपको पता है ऐसे बनेगा, उसके अंदर जो भी वैल्यूज है वो आपने लिख दिया, जो भी सेट का वैल्यूज, अब वो टपल बन गया. अब आपने लिखा लिस्ट में कन्वर्ट करिए हेलो, जैसे आपने लिखा लिस्ट में आप कन्वर्ट करिए हेलो, तो ये जो जितने भी आइटम्स हैं वो सबको सेपरेट कर करके एक लिस्ट बना देगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट. Then to convert to a dictionary, each item must be a pair. लेकिन अगर आपको किसी भी चीज को डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो एक पेयर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है डिक्शनरी में हर एक चीज का एक की होता है, एक वैल्यू होता है. तो अगर आपने लिखा है 1, 2, 3, 4, सो डिक्शनरी में कन्वर्ट करेगा 1:2 एंड 3:4. जैसे 3, 26 इसको आपने एक साथ लिया. अब जैसे ये लिस्ट से आप कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, देखिए 1, 2 एक लिस्ट है, 3, 4 एक लिस्ट है, और इनके बीच में आपने कॉमा डाल के एक बाहर एक ब्रैकेट बना दे, तो दिस इज समथिंग नोन एज लिस्ट ऑफ लिस्ट्स. ठीक है, ये लिस्ट का लिस्ट बना दोगे और उसको आप फिर फर्दर किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ऐसे बाहर ब्रैकेट लगा के
डिक्ट फंक्शन लगा दे रहे हो, तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिक्शनरी में। ठीक है, फिर फर्दर क्या है, देखिए ये अब हमने क्या किया, ये टपल है, 3,26 एक टपल है, 4,44 एक टपल है। अब इस टपल को आपने कन्वर्ट किया लिस्ट में, और फिर इसको अंदर आपने क्या कर दिया, डिक्ट फंक्शन लगा दिया। नाउ व्हाट इज दिस, नाउ दिस इज द लिस्ट ऑफ टपल्स। अब ये क्या बन गया, लिस्ट ऑफ टपल्स, उसको आपने कन्वर्ट किया, तो क्या हो जाएगा, 3:26, 4:44, राइट। तो इस तरीके से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो डिक्शनरी में, लेकिन डिक्शनरी में आपने ध्यान रखना है कि हमेशा एक पेयर्स होने ही चाहिए, राइट। Then the next topic for the day, that is precedence and associativity of operators in Python। अगर Python में आप देख रहे हैं तो ऑपरेटर्स अब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनकी कुछ प्रेसिडेंस होती है और कुछ एसोसिएटिविटी होती है जो आपको मालूम होनी चाहिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है और कैसे आ रहा है, और रिजल्ट आप जैसे चाहते हैं वैसे आप रिजल्ट देख सकते हैं पाइथन के अंदर, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आपको देखना है। जस्ट अ सेकेंड। Okay. See, the combination of values, variables, operators, functions, this is known as expression। आपको तो पता है कि expression में value भी हो सकता है, variable भी हो सकता है, operator भी हो सकता है, function भी हो सकता है। Python interpreter सिर्फ एक valid expression ही evaluate करेगा, invalid evaluate नहीं करेगा। For example, अगर आपने यहाँ पे लिखा 5 - 7, so what is 5 - 7? 5 - 7 is -2, so it is a valid thing, right? और एक एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर भी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर होंगे सो देयर इज अ रूल ऑफ प्रेसिडेंस। इट इज फॉलोइंग द ऑर्डर इन विच दीज ऑपरेशंस आर बीइंग कैरिड आउट। फॉर एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन का हायर प्रेसिडेंस होता है सब्ट्रैक्शन से। तो फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन है जैसे इस तरीके से 10 - 4 × 2, तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस पहले है, तो आपने पहले क्या करना है, 10 ऐसे ही रखा, 4 × 2 कितना हो गया, 8। ठीक है, तो पहले आपने इसको सॉल्व किया and then you are solving this expression। now 10 - 8 is nothing but 2, तो इसको बोला जाता है प्रेसिडेंस। and we can change this order also, अगर आप parenthesis लगा लीजिए, क्योंकि parenthesis की प्रेसिडेंस जो है वो मल्टीप्लिकेशन से भी ज्यादा होता है। तो मान लीजिए अगर आपने 10 - 4 ब्रैकेट में पहले दिया, तो अब वो पहले 10 - 4 करेगा, दैट मीन्स दिस इज 6 × 2 दैट इज 12, तो अब रिजल्ट 12 हो गया। तो आपको कैसा रिजल्ट चाहिए वो आपको पहले खुद से देखना भी होगा, राइट। देख सकते हैं आप यहाँ पर, द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन इज लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो मैंने आपको दे रखा है, ये जो है पैरेंथेसिस इसका सबसे हाईएस्ट होता है, उसके बाद एक्सपोनेंट का, उसके बाद अगर आपको यहाँ पर यूनरी प्लस करना है, यूनरी माइनस करना है, बिटवाइज नॉट करना है, तो अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस है तो, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, उसके बाद बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर्स आता है, उसके बाद बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, ये सारी चीजें। फिर अगर आपको कंपैरिजंस करना है या मेंबरशिप टेस्ट करना है तो अब भी आप कर सकते हैं, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड, और सबसे लोएस्ट होता है लॉजिकल और। तो ये आपकी एक प्रेसिडेंस होती है हायर से लोअर। अब इसमें लॉजिकल क्या है, बिटवाइज क्या है, बिटवाइज शिफ्ट क्या है, इतना तो हम इसके अंदर डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा यूज होता है उसको हम लोग जरूर डिस्कस कर लेंगे, राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट। जैसे कि अगर मैं अभी देख रही हूँ प्रेसिडेंस ऑफ और एंड, मान लीजिए मैंने एक कोड लिखा, उसमें मुझे और एंड का प्रेसिडेंस चेक करना है, तो मैंने एक कोड लिखा, ये मेरा कोड है, देखिए ये कोड को थोड़ा ध्यान से देखिए, लिखा है मील इज इक्वल्स टू फ्रूट। अभी मेरा मील क्या हो गया, फ्रूट। फिर मैंने लिखा मनी इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने इफ कंस्ट्रेंट लगाया है यहाँ पर। ये सब क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। इफ मील इज इक्वल्स टू फ्रूट, अगर मेरा मील फ्रूट हुआ और मील इज इक्वल्स टू सैंडविच हुआ एंड मनी इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 2, अगर इनमें से कुछ भी कंडीशन हो रही है तो मुझे प्रिंट क्या करवा दीजिए, लंच इज डिलीवर्ड, लंच बीइंग डिलीवर्ड, एल्स प्रिंट कांट डिलीवर लंच, अदरवाइज डिलीवर कर प्रिंट करवा दीजिए कि कांट डिलीवर लंच। जब इसका मैं जब आउटपुट देखती हूँ तो ये मेरा आउटपुट आता है, लंच बीइंग डिलीवर्ड, दिस इज माय आउटपुट। ठीक है, जो हमें आउटपुट चाहिए वो आउटपुट यहाँ पर नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि एंड का प्रेसिडेंस जो है वो हायर है एज कंपेयर टू और। पहले एंड आता है और उसके बाद और आता है, यानी उसका मील फ्रूट है और उसका मील सैंडविच, इन दोनों में से कुछ एक तो होना चाहिए था, उसको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ही मनी की वैल्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 हो जा रहा है, वो आपको लंच बीइंग डिलीवर्ड दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एंड और
जो आप ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं उसकी भी प्रेसिडेंस आप इस तरीके से कोडिंग में चेक कर सकते हैं। चेंज करना है आपके पास एक ही तरीका है, दैट इज पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस लगा के चेंज कर दीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पर पेरेंथेसिस लगा दिया, इफ मील इज इक्वल्स टू फ्रूट और मील इज इक्वल टू सैंडविच, यानी अब ये चेक करना ही पड़ेगा उसको कंडीशन। और मैंने यहाँ पर ऊपर दे दिया मील इज इक्वल्स टू फ्रूट एंड मनी इज इक्वल्स टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड यहाँ पे दे दिया मनी इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2, तो मुझे प्रिंट करवाए लंच बीइंग डिलीवर्ड, अदरवाइज मुझे प्रिंट करवा दे कांट डिलीवर लंच। तो ऊपर ही मैंने दे दिया है कि मील क्या है, फ्रूट, तो फ्रूट है, इट्स ओके, तो फ्रूट वाली वैल्यू तो आ गई। अब मैं क्या दे रही हूँ यहाँ पर, एंड मनी इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2, तो मनी तो मेरा यहाँ पे 0 मैंने दे दिया, वो तो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2 नहीं हुआ, तो मेरा ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गया, वो एल्स में चला गया और यहाँ पर मुझे दे देगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, कांट डिलीवर लंच, राइट। तो अपने हिसाब से, जैसे आप, मैं ऐसे ही तो रिजल्ट देखना चाह रही थी, कर सकते हैं, लेकिन कहीं पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं, तो अपने हिसाब से अगर आप ऐसे लिख देंगे सिंटैक्स को, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंगली कंपाइलर कंपाइल करके दे देगा, क्योंकि वो जानता है कि एंड का प्रेसिडेंस पहले है, वो नहीं जानता कि आप देखना क्या चाह रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली यू कैन सी द रिजल्ट्स। तो आपको अगर प्रेसिडेंस समझ में आ गया, सो द नेक्स्ट थिंग इज द एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है, we can see that more than one operator exists in the same group। हो सकता है कि एक से ज्यादा ऑपरेटर्स की सेम प्रेसिडेंस भी हो, ऐसे भी हो सकता है ना। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन है, वैसे ही अगर डिवीजन है, इन दोनों की तो सेम प्रेसिडेंस है, पहले इसको कैलकुलेट करिए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो व्हेन द टू ऑपरेटर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस, तो आपको हेल्प लेनी पड़ती है, एसोसिएटिविटी इज गोइंग टू हेल्प यू टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस, तब वो आपको ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस देखने में हेल्प करता है, राइट। So associativity is the order in which the expression is evaluated। associativity वैसे तो most of the time it is left to right, लेकिन कभी कभी right to left भी होता है। For example आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है 5 into 2 divided by 3, तो left to right है इसकी, यानी 5 into 2 कितना हो गया, 5 2 is 10 divided by 3 कितना हो गया, what is it, 3.3 something, 3.33 something like this, ठीक है। तो उसने आपको जो आउटपुट दिया है, आपने उसको क्या दिया है, 3, क्योंकि उसने क्या कैलकुलेट करा है, लेफ्ट से राइट में। लेकिन अगर आप चाहें कि नहीं, यही सेम एक्सप्रेशन, ये जो 5 into 2 डिवाइडेड बाई 3 है, ये जो है मेरा राइट से लेफ्ट में जाए, ये डबल, ये क्या होता है, सिंगल डैश क्या होता है, ये भी मैं धीरे धीरे बताऊंगी, अभी पहले आप इसको समझिए कि ये डिवीजन ही है। राइट से लेफ्ट में बोलेंगे, तो राइट से लेफ्ट में जाने के लिए आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, पैरेंथेसिस लगा देंगे। अब 2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्या आएगा, समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग आया, दैट मींस द वैल्यू इज 0 ओवर हियर। व्हेन 0 इज मल्टीप्लाइड बाय 5 द आंसर इज 0। तो देखिए, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट क्या करना है या राइट टू लेफ्ट क्या करना है। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट है, लेकिन पैरेंथेसिस लगाएंगे तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको ये बातें देखनी है, उस तरीके से विजिबल करनी है। देन अगर आप एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगाएंगे, दिस हैज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी इन पाइथन, ठीक है, एंड इट शोज द लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी ऑफ दिस। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैंने लिखा है 2 to the power of 3 to the power of 2, तो अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, हमने ऐसे लिख दिया, पहले क्या होगा, ब्रैकेट कैलकुलेट होगा, 3 to the power of 2 का मतलब क्या हुआ, 3 into 3 that is nothing but 9, 3 to the power of 2 कितना हुआ, 3 into 3 that is nothing but 9, then 2 to the power of क्या हो गया, 9, so that means 2 to the power of 9, यानी 2 is to 9, जैसे भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 to the power of 9 is nothing but 512, राइट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एक्सपोनेंट है वो राइट से लेफ्ट एसोसिएटिविटी लेता है, राइट। और अगर मान लीजिए इफ 2 नीड्स टू बी एक्सपोनेंटेड फर्स्ट, अगर आपको 2 को पहले एक्सपोनेंट करना है, ये वाला पहले आपने करना है, तो उसको पहले लगा दीजिए, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। ऐसे करना है तो ऐसे कर दीजिए, ये क्या हो गया, 2 2 4 2 8, 8 की पावर 2, सो दैट इज व्हाट, दैट इज 8 8 64, 64 आपको आंसर मिल गया। कैसे आपने चेंज करना है आपने देखना है, लेकिन एसोसिएटिविटी कुड बी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। अब ऐसे भी क्लास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो एसोसिएटिव नहीं होते हैं, नॉन एसोसिएटिव ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक द असाइनमेंट ऑपरेटर्स और द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इनके बीच में एसोसिएटिविटी नहीं होती है, इनके लिए अलग रूल्स होते हैं, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है x इज स्मॉलर देन y इज स्मॉलर देन z, इसका मतलब ये है ही नहीं कि x इज स्मॉलर देन y और it is the complete expression is smaller than z, nor x is smaller than y is smaller than z, इसका कुछ ऐसा मतलब नहीं है। इस एक्सप्रेशन को अगर आपको इवैल्यूएट करना है, x is less than y is less than z, तो पहले आपको करना पड़ेगा x is less than y, पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा,
ठीक है, फिर y इज लेस देन z, और इसको आपने लेफ्ट से राइट में इवेलुएट करना है। ओके, फर्दरमोर व्हाइल चेनिंग दी असाइनमेंट्स, जैसे आप कर रहे हो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल्स टू 1, ये परफेक्टली वैलिड है, आप ऐसे एक साथ सारे वेरिएबल्स को वैल्यू दे सकते हो, लेकिन x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z प्लस 2 आपको एरर दे देगा, वो समझ ही नहीं पाएगा ये 2 ऐड करना है, किस में करना है, z में करना है, y में नहीं करना है, x में करना है, क्या करना है, सो यू विल सी एन एरर, तो दैट इज एन इनवैलिड एक्सप्रेशन, राइट। ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। Then the next and the very important thing is the range function, कि range function जो है वो क्या होता है। देखिए, रेंज टाइप जो है इट इज गोइंग टू रिटर्न एन इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, या आपको सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देता है। अब आप इसके अंदर स्टार्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, स्टॉप वैल्यू भी दे सकते हैं, स्टार्टिंग से स्टॉपिंग में, ठीक है। इसको देने का तरीका है रेंज ऑफ स्टॉप दे सकते हैं, रेंज स्टार्ट स्टॉप और स्टेप दे सकते हैं। पैरामीटर्स देने हैं तो दे सकते हैं, नहीं देने हैं तो भी नहीं दे सकते, तुम्हारी मर्जी। स्टार्ट आपको स्टार्टिंग वैल्यू देगा, स्टॉप आपको स्टॉपिंग वैल्यू देगा, और स्टेप आपको स्टेप देगा, कितने इंक्रीमेंट में आपने उस चीज को बढ़ाना है। नाउ हाउ रेंज वर्क्स इन पाइथन, जैसे आपने लिखा प्रिंट लिस्ट रेंज ऑफ 0, तो आपकी एक एम्प्टी रेंज बन जाती है, एक एम्प्टी लिस्ट बन जाती है। अगर आप इसमें स्टॉपिंग दे रहे हो, k इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 10, मान लीजिए आपको रेंज चाहिए 10 और इसको आपने क्या बना देना है, लिस्ट बना देना है, ठीक है। तो ये पूरा काम आप इसको कर सकते हो, और आपने मान लीजिए इसको कोई k वेरिएबल में डाल दिया, k इज इक्वल टू दिस, तो आपको वैल्यूज क्या दे देगा, 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 4 5 अप टिल 9 आपको एक लिस्ट बनाकर दे देगा। और मान लीजिए स्टार्ट भी आप देना चाहते हो, स्टॉप भी आप देना चाहते हो, तो भी आप दे दीजिए। आपने 1 से स्टार्ट किया तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, और मान लीजिए आपने लास्ट में 10 दिया है, तो आपको अब तो मैंने बता ही दिया स्टॉपिंग वैल्यू में एक उससे पहले रुकता है, सो 1 से स्टार्ट हुआ और 9 पर स्टॉप हो गया। सो व्हाट वी हैव डन, रेंज एक बहुत पावरफुल चीज है जो आपको यहाँ पे यूज करनी है। तो range is, we have converted the range to a Python list, as range returns a generator like object that only prints the output on demand, जो demand चाहिए उस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। Range object returned by the range constructor can also be accessed by its index, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव इंडेक्सेस भी इसके अंदर हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। We will be using the concept of it in the for loop, जब हम लोग नेक्स्ट टाइम अब जब लूप्स करेंगे तो लूप्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस रेंज को काफी अच्छे से उसके अंदर डालकर देखेंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स यूजिंग रेंज ऑपरेटर, रेंज ऑपरेटर को यूज कर आप एक इवन नंबर दिखा दीजिए, तो एक स्टार्ट ले लो, एक स्टॉप ले लो, और स्टेप साइज इवन नंबर हमको पता है 2 होता है। अब मुझे प्रिंट करना है लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ स्टार्ट स्टॉप स्टेप, तो आपको पता है स्टार्ट कहां पर होगा, 2 से स्टार्ट हो गया, और उसमें आपने स्टेप साइज कितना दिया 4, यानी 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, अब 12 प्लस 2 कितना है, होता है 14, लेकिन लास्ट वैल्यू स्टॉपिंग वैल्यू आप कभी नहीं लेते हैं, तो आपकी लिस्ट में वैल्यूज क्या होगी 2 4 6 8 10 एंड 12। अगर नेगेटिव स्टेप से करना है तो भी आप कर सकते हैं, स्टार्ट दे दो 2, स्टॉप दे दो -14, स्टेप दे दीजिए -2, सो 2 minus 2 is 0, 0 to minus 2 is minus 2, minus 2 minus 2 minus 4, minus 6, minus 8, minus 10, minus 12 and minus आना चाहिए था 14, लेकिन वो स्टॉपिंग वैल्यू है, वो इंक्लूड नहीं होती है, राइट। सो इस तरीके से आप रेंज फंक्शन को यूज कर सकते हैं। डबल कोलन हम पाइथन के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्लाइसिंग करने के लिए। पाइथन सीक्वेंस slice addresses could be written as start, end and step, and any of this could be dropped, जैसे मैंने लिखा a of double colon 3, तो इससे मुझे हर एक थर्ड आइटम जो है सीक्वेंस का मिल जाता है। इसका आप लिख सकते हैं सीक्वेंस स्टार्ट एंड स्टॉप, और उसके बाद आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे भी आपको देना दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपने डबल कोलन दिया तो आपको एक सीक्वेंस ऑफ nth आइटम मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा s इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 20, तो जब मैंने लिखा लिस्ट ऑफ रेंज ऑफ 20, तो 20 की रेंज की लिस्ट बना दीजिए, यानी 0 से 20 तक की वैल्यूज मुझे उसने दिखा दी। अब अगर आपको सिर्फ हर एक थर्ड आइटम देखना है तो आप क्या करोगे, is to 3, यानी आपको पहले फर्स्ट आइटम दिखाया, उसके बाद 1 2 छोड़कर नेक्स्ट आइटम, फिर 1 2 छोड़कर नेक्स्ट आइटम, 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 1 2 छोड़कर नेक्स्ट आइटम उसने आपको दिखा दिया। सिमिलरली अगर आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग में करना है तो आप नेगेटिव तरीके से भी कर सकते हैं। -1 से अगर आप करना चाहते हैं तो -1 से यहां से स्टार्ट हुआ 19, फिर 1 छोड़कर जो भी 1 1 का गैप देना, तो 1 1 छोड़कर आप यहां से भी डिस्प्ले कर सकते हैं या देख सकते हैं। इफ आई एम राइटिंग 2 ऑनवर्ड्स, तो 2 ऑनवर्ड्स मुझे क्या दिखाएगा, 2 से आगे सब कुछ दिखाता जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रेंज ऑपरेटर को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा हम इसको यूज करते हैं, और आपको ये सब
और डिटेल में बताया जाएगा जब अभी मैं कोडिंग कर कर दिखाऊंगी, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये कोडिंग रेंज की मैं सबसे ज्यादा करूंगी जब मैं फॉर लूप्स आपको करूंगी, राइट। नेक्स्ट थिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? इन पाइथन देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ इफ एल्स। इफ एल्स पाइथन में लिखने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है इफ, उसके बाद स्टेटमेंट इफ, एक होता है इफ एल्स, उसके बाद स्टेटमेंट, एक होता है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये क्या होता है एक बार देख लीजिए। पाइथन का इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है ये होता है इफ कंडीशन, फिर आपने बॉडी दे दिया इफ का, और उसके बाद द इफ स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स द कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो जो कोड इफ के अंदर होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर वाला आपको वैल्यू दिखा देता है। फटाफट एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा नंबर इज इक्वल्स टू 10, तो ये चेक करता है कि क्या मेरा नंबर जो है, मुझे चेक करवाना है कि क्या मेरा नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो मैं लिखूंगी क्या, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0। अगर मेरा नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है तो मुझे प्रिंट करवाना है नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज मुझे प्रिंट करवाना है दैट द इफ स्टेटमेंट इज इजी, समथिंग लाइक दिस। तो इस तरीके से काम करेगा। अब माइंड इट, यहाँ पर देखिए कुछ इतने कोड्स के ब्रेसेस वगैरह तो इतने आपके डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है अगर मैं लिख रही हूँ इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, देन यहाँ पर कोलन इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपको यहाँ पर एक इंडेंटेशन देनी है। सी हियर देयर इज एन इंडेंटेशन, सो इंडेंटेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल वी आर डीलिंग विद द कोडिंग्स। और यहाँ पर आपने प्रिंट करा वैल्यूज, और ये नहीं अगर सेटिस्फाई हो रहा तो आपने प्रिंट यहाँ करा। ये कोड में कर कर दिखाऊंगी और आपको एक बार गलत भी कर कर दिखाऊंगी, अगर आप इंडेंटेशन गलत कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम देगा। उसके बाद है पाइथन इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है इसका, पहले इफ कंडीशन दिख दिया, देन ब्लॉक ऑफ इफ कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ठीक है, अदरवाइज एल्स में चला जाता है। ब्लॉक ऑफ इफ कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो इवेल्युएट करता है। जैसे देख लो एक बार, नंबर इज इक्वल टू 10, अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन 0 है, आपको दिख रहा है नंबर ग्रेटर देन 0 है तो प्रिंट कर देगा पॉजिटिव नंबर। अगर मान लीजिए ये होता -10 तो क्या वो प्रिंट कर देता नेगेटिव नंबर। और मान लीजिए अगर इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं होता तो मुझे दिखा देता जो भी वैल्यूज हैं दैट द स्टेटमेंट इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेंटेशन बार बार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो पाइथन के अंदर इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स होता है, इफ एलिफ एल्स होता है, ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इफ एलिफ एल्स के अंदर क्या होता है, द इफ एल्स स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड अमंग द 2 अल्टरनेटिव्स। जब आपके पास सिर्फ 2 अल्टरनेटिव्स हो तब आप इफ एल्स को यूज कर रहे हो। हाउएवर इफ यू नीड टू मेक अ चॉइस बिटवीन मोर देन 2 अल्टरनेटिव्स, 2 से ज्यादा अगर अल्टरनेटिव्स चाहिए तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है इफ एलिफ एल्स। इसका सिंटैक्स देखो, इफ कंडीशन 1, अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई हुई तो कोड ब्लॉक 1, एलिफ अगर कंडीशन 2 है तो कोड ब्लॉक 2, एल्स आपका हो गया कोड ब्लॉक 3। यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये आपने रिजल्ट प्रिंट कराया, सेकंड हुआ तो ये प्रिंट करवाया, थर्ड हुआ तो ये प्रिंट करवाया, ठीक है, राइट। सो नंबर इज इक्वल टू 0, इफ माई नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो प्रिंट कराएगा पॉजिटिव नंबर, ये तो यहाँ पर नहीं हुआ। एल इफ द नंबर इज इक्वल टू 0 तो प्रिंट करवा देगा 0, और अगर ये भी नहीं होता तो वो मुझे प्रिंट करवा देता नेगेटिव नंबर। तो जब आपको 2 से ज्यादा अल्टरनेटिव चाहिए तो आप क्या यूज करते हैं, एल इफ। तो आपने क्या पढ़ा, इफ 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 एल्स, इफ एल इफ एल्स, ठीक है। एक और छोटी सी चीज है, वो ये है कि पाइथन में हमें नेस्टेड इफ्स की भी बहुत जरूरत होती है। नेस्टेड इफ का मतलब एक इफ के अंदर हम एक और इफ के अंदर हम एक और इफ इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट। So we can also use if statement inside an if statement. This is known as nested if. Outer if उसकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसके कुछ स्टेटमेंट्स, अदरवाइज इनर if उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो उसके स्टेटमेंट्स आप प्रूव कर सकते हैं। प्लीज नोट दैट वी कैन ऐड else elif statements to the inner if statements as required. मान लीजिए आपको बाहर वाले if में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अंदर वाले if में अगर मान लीजिए आपको else देना तो दे सकते हो, if else देना तो आप दे सकते हो, जो भी देना है, राइट। एंड यू कैन मेक इट एज नेस्टेड और यू कैन मेक द लेयर्स, जितने लेयर्स बनाने हैं जितना नेस्टेड उसको करना आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा कोड यहाँ देखिए, नंबर इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। आउटर स्टेटमेंट देख रहा है, इफ माई नंबर इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, क्या मेरा नंबर जो है वो ग्रेटर या इक्वल टू 0 है, क्या नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अगर है फिर उसको चेक कर रहा है क्या मेरा नंबर जो है वो इक्वल टू 0 है, नहीं ऐसा तो नहीं है, तो वो आप इनसाइड वाले इफ के अंदर एल्स में चले जाओगे और वो बता रहा है क्या, नंबर इज पॉजिटिव, राइट। तो इस तरीके से देख भी सकते हैं, आउटपुट इज नंबर इज पॉजिटिव। आप इस तरीके से इसको आप शो कर सकते हैं, राइट।
सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। अभी हम लोग इसको हम कोडिंग में कर कर देख लेते जितना हमने सीखा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में लूप स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वी विल बी स्टार्टिंग विद द लूप्स। अब हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट सारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। सो लेट अस जस्ट मूव विद द कोडिंग पार्ट। ओके, सो गिव मी अ सेकेंड प्लीज। वी आर क्लास, आई होप आपको पाइथन प्रोग्रामिंग समझ में आ गया है। आज हम लोगों ने सारे बेसिक समझ लिए हैं जो पाइथन में हमारे यूज़ होते हैं, राइट। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी विल बी डूइंग, व्हाट वी विल बी कवरिंग, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप्स करेंगे। आपको पता है लूप्स के ऊपर आउटपुट्स वगैरह बहुत पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, एंड बिकॉज ऑफ द रीसेंट ट्रेंड्स आपको आएंगी ही। मैं एक चीज़ आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ, वो ये है क्लास की आपके जो भी रीसेंट ट्रेंड्स है, जैसे सर ने अभी इंट्रोड्यूस कर ही दिया था, बताया ही आपको इंट्रोडक्शन में कि एआई है, देन गोलैंग है, ये सारे के सारे जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये सारे जो रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके ऊपर आप मान के चलिए आपके टोटलिटी में 10 क्वेश्चंस तो आने ही हैं, 8 to 10 क्वेश्चंस। सो वी कैन नॉट लीव दिस थिंग नाउ। योर बेसिक्स शुड बी डेफिनेटली क्लियर, तभी आप उधर क्वेश्चंस फटाफट कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव द एग्जामिनेशन एज टाइम बाउंड एग्जामिनेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है। और अब आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे लूप्स वगैरह कर लेंगे, देन वी विल बी डूइंग फंक्शंस, देन वी हैव वेरी एनोनिमस फंक्शंस नोन एज लैम्डा फंक्शंस। तो ये सब भी आपको क्लियर करवाया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने इसका प्रैक्टिकल क्लास यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा है। लाइक we have a lot many environments, like we have been working, like what I have personally chosen is your Google Collaboratory, तो हम उसमें काम कर सकते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकल तो यहाँ पर करवाया नहीं है, बिकॉज दिस इज़ पर्टिकुलरली फॉर दी लाइक कीपिंग इन द माइंड ऑफ कीपिंग इन व्यू ऑफ NIC रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ वो चीज़ करवाया है जो आपको मालूम होना चाहिए। बट इफ़ यू पर्सनली आर इंटरेस्टेड और इफ़ यू वांट द प्रैक्टिकल सेशंस ऑल्सो, सो वी कैन टेक अप दैट ऑल्सो। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन ज़रूर करके बताइए कि आपको इसका प्रैक्टिकल भी करना है। लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और इफ़ यू वांट टू डू, तो उसके प्रैक्टिकल सेशंस भी हम लोग इंक्लूड कर देंगे। बट दिस इज़ जस्ट कि आपको इसके अंदर, आपको प्रैक्टिकल के अंदर आपको सारा कुछ तो मैं करवा दूंगी, लेकिन वही कोड्स हम करवाएंगे जो मैंने आपको समझा दिया है। तो बेसिक्स जो हैं वो आपको क्लियर करते चलना है। सो द नेक्स्ट लेक्चर विच वुड बी इन द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दिस लेक्चर, वो आपका पाइथन का आएगा, बट दैट वुड बी इन द नेक्स्ट वीक। टिल देन यू हैव टू क्लियर ऑल द थिंग्स, यू हैव टू सॉल्व द थिंग्स। और पर्सनली भी मैं बोलूँगी आपको कि आप अपना कोलैब में आप सबको गूगल कोलैब कैसे ओपन करना है सब कुछ, इफ यू आर इंटरेस्टेड आई विल बी टेलिंग यू दैट थिंग्स ऑल्सो। आप उसको कर सकते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप जो भी एरर आ रहे हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं वाइल यू आर टेकिंग द आउटपुट्स, और वो आपको तब पता चले तो वो बेटर लगेगा, ठीक है। तो आप ये भी करा जा सकता है कि हम आपको उसका प्रैक्टिकल सेशंस भी दिखा दें, सो यू कैन गो थ्रू दैट ऑल्सो, बट ओनली इफ यू आर इंटरेस्टेड। इफ यू विल बी शोइंग मी द इंटरेस्ट ओनली, देन वी आर गोइंग टू क्रिएट इट, अदरवाइज इट्स ऑफ नो यूज, राइट। तो आप अपने कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता दीजिए दैट यू आर इंटरेस्टेड इन learning the things through practical sessions also, so we'll be taking up that also, and that you need to practice. See, practice is the key to success, that everyone is aware of, but we have to follow it this time. मैं चाहती हूँ और सर भी यही चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास 596 वैकेंसीज़ हैं NIC की, तो वो सारे के सारे स्वरूप कोराए चैनल से ही होने चाहिए। अब वो इतना इजी तो नहीं है, यू हैव टू वर्क हार्ड, वी आर वर्किंग हार्ड, सो यू टू हैव टू जॉइन हैंड्स विद अस एंड यू हैव टू मेक इट सक्सेसफुल। हमारी सक्सेस आपकी सक्सेस में है, राइट। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट थिंग। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर और बता देती हूँ कि आप प्रीवियस जो सर करवा रहे हैं कॉम्बिनेट्रिक्स वाला लेक्चर्स, उसको कंप्लीट करेंगे, वो कंप्लीट करेंगे। एवरीथिंग इज़ लिंक्ड। अगर आप कंप्लीट करेंगे तो मैं बता दूं, अभी जो सर ने आपको जितने पिछले टॉपिक्स करवा दिए हैं, उसमें एप्टीट्यूड के भी आपको सर ने 4 से 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। So you have to give your heart and soul while studying, and the lectures are linked. We are also giving our heart and soul. So you too have to help us, to allow us to help you, right? So that is all for today. Thank you. We'll be continuing with Python in the next lecture. Meanwhile, sir would be taking up the other topics of combinations, probability, statistics, right? Thank you and all the best.